Okay, so today we are going to start with module 5 and first chapter of module 5, that is transmission of heat. Actually ये last module का part होना चाहिए था but last module थोड़ा बड़ा हो गया, so I have to adjust it here. So we are officially into 15th chapter module 5. So 50% हमारा हो गया, which means that actually more than 50, but number of chapter wise we are 50%. Syllabus wise, we have already covered 60%. So transmission of heat. So basically, heat transfer कब होता है? Whenever you have one part of the body which is at higher temperature compared to the other part of the body, या फिर when you have one body which is at higher temperature as compared to other body. Okay. Normally, when talking about transfer of heat, so when talking about heat transfer, we say that heat always transfers from one part hotter region of a body, single body की बात करते हैं हम लोग, to colder region of the same body. लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम बॉडी में ही हीट ट्रांसफर होगा. As you know, you receive heat in the form of radiation from sun. So sun is one body and you are other body basically. So not necessarily that heat will be transferred always between one part to other part of the same body. Okay. Anyways, that is not really important. Important is that you have three modes of heat transfer. हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना required है we will see. So in the three mode of heat transfer, you already know this: conduction, convection, and radiation. So conduction में the heat is transferred because of vibration of molecules. मतलब there is no actual motion or no net displacement of molecules or atoms. So conduction, convection, and radiation. I will go little bit into details of each of this. क्या होता है कि कंडक्शन में जब आप एक एंड पे, मान लो वी हैव अ रॉड एंड यू ऑलरेडी नो दैट रॉड मतलब सॉलिड मतलब पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive atoms or molecules is same, always same. तो जब भी आप एक एंड को हीट करोगे, then what happens is, you already know that, just a minute, right? So what we know is, already at room temperature solids के जो ions होते हैं, and at this level you should know that we are talking about ions here. Why ions? Because you should know that any atom has electrons and there are protons and neutrons, and number of electrons and number of protons in an atom are equal, which means atom as a whole is neutral at room temperature. आपको ऑलरेडी बताना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे मेटल के केस में सफिशिएंट एनर्जी होता है टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब होता है कि नाउ देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, है ना. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पता है ना आपको. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, यू हैव हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. हीट की वजह से क्या होता है दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, मतलब पॉजिटिव आयन. अब प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव आयन इज हेवी. क्यों हेवी? बिकॉज देयर आर so many protons and neutrons inside.
So it cannot go from one part of the body to another part. So what happens is it starts vibrating at its position. थर्मल एक्सपेंशन याद होगा, तो थर्मल एक्सपेंशन का ही केस है मोर और लेस. सिर्फ कंडक्शन में क्या होता है कि व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ रॉड, यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू द आयंस. आयन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. तो जब भी दे विल वाइब्रेट विथ मोर एम्पलीट्यूड, दे विल कोलाइड विथ नेबरिंग atoms, neighboring ions, right? So they transfer energy to the neighboring ions. और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, that collision is called as inelastic collision. तो neighboring ion ने एनर्जी लिया, then this neighboring ion starts vibrating with more amplitude and there is collision with next ion. So this is how एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. ऐसा एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है. इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग द गेम ऑफ पिलोस, राइट? एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड वाया कोलिजन्स, करेक्ट? दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज कंडक्शन. ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ये हुआ कि हॉट एंड से कोल्ड एंड पे एनर्जी गया विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ आयन्स. आयन खुद एनर्जी लेके नहीं गया था वहां पे, राइट? सो कंडक्शन में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू कोलिजन्स विदाउट एक्चुअल मोशन. सो आप बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एक्चुअल मोशन, विदाउट एक्चुअल मोशन या फिर विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन मतलब यही वही केस है जिस मेथड से आप घर में दूध या पानी गर्म करते हो. तो व्हाट हैपेंस इज यू गिव हीट एंड देन द मॉलिक्यूल एट द बॉटम रिसीव्स हीट. सबसे पहले उसको हीट मिलता है, देन इट गोज अप. फिर जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है विच हैव लेस टेम्परेचर, दे सेटल डाउन, वो नीचे आ जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, करेक्ट? तो यू कैन शो दिस वाया अ साइक्लिक प्रोसेस. गुड, राइट? तो यहाँ पे हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल. रेडिएशन में हीट इज ट्रांसफर्ड from hot body to a cold body with the help of electromagnetic waves, correct? अब as you can say conduction में material medium is required. तो यहाँ पे material medium की जरूरत है, यहाँ पे भी material medium की जरूरत है. मतलब we need a medium to transfer heat from one part to other. यहाँ पे there is no need of material medium. So material medium not required here. क्यों? अगर ऐसा होता तो कभी सन से आप तक हीट पहुंचता ही नहीं. हीट पहुंचता नहीं तो फिर लाइफ नहीं होती. लाइफ नहीं होती तो आप नीट के एग्जाम भी प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, इन शॉर्ट, करेक्ट? ओके, गुड. तो रेडिएशन मीन्स यू कैन ट्रांसफर हीट. और इसलिए मैंने बताया था कि नॉर्मली कन्वेक्शन और कंडक्शन में हम लोग बोलते हैं हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट. या फिर दो बॉडीज में अगर ट्रांसफर होना है तो दे हैव टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड. देन ऑब्वियसली दिस इज अ स्लो प्रोसेस. मैं डिटेल्स बता रहा हूं क्योंकि मैं एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूं, राइट? दिस इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस and this is a very fast process. क्यों very fast? What is speed of EM radiation, EM waves? 3 into 10 power 8 meter per second, 3 lakh kilometer per second. So this is very fast process. Good. Then we already know कि यहाँ पे जब heat conduct होता है, heat transfer होता है, तो motion of particle may be zigzag. तो मैं वो mention नहीं करूंगा.
but you already know radiation EM waves always travel in a straight line. सिर्फ पाथ चेंज होगा if medium is changed. एयर से वाटर में गया तो पाथ चेंज, एयर से ग्लास में गया तो पाथ चेंज, ग्लास से वाटर में गया तो पाथ चेंज. दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वो ऑप्टिक्स का पार्ट हो जाएगा. वी विल सी दैट लेटर. गुड. देन ये सॉलिड्स में एप्लीकेबल है, ये लिक्विड्स में एप्लीकेबल है, और यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया कि इफ देयर इज नो मीडियम फिर भी चलेगा, बट ये गैसेस और लिक्विड्स में भी होता है. मोस्टली गैसेस एंड सॉलिड्स और लिक्विड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है बेसिकली. फॉर एग्जांपल लेंस, राइट, बट नॉट इन मिरर्स, क्योंकि मिरर एक साइड से पॉलिश होता है. तो दिस कैन टेक प्लेस इन गैसेस and liquids and solids if transparent medium is there. So transparent medium. Good. Then importantly conduction और convection में क्या होता है, और ये रिलेटेड है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट से. जब मैंने एक रॉड ड्रॉ किया था यहाँ पे, और मैं रॉड के एक एंड को हीट कर रहा था, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, T1 इज ग्रेटर देन T2. तो जब ए से बी की तरफ हीट फ्लो होगा तो मीडियम का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो द टेम्परेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम इज आल्सो चेंजिंग. ए से बी हीट फ्लो होगा तो ए से बी जो भी पोर्शन होगा, सेक्शन होगा, उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा. वेयर एज फॉर रेडिएशन जरूरी नहीं है. फॉर रेडिएशन it is not strictly required that there will be change of temperature of the medium. How come? Depends. सन से आपके पास एनर्जी आता है तो बीच में क्या एयर हॉट हो जाता है क्या? डिपेंड्स. अगर यू हैव हीट एब्जॉर्बेंट, योर बॉडी इज अ गुड हीट एब्जॉर्बेंट, इसलिए आपको गर्म फील होता है, राइट? सो इट डिपेंड्स. ऐसा क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डीके ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो पता होना चाहिए. यहाँ पे डीके ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 0, तो यहाँ पे डीके होता ही नहीं है बेसिकली. गुड. देन we'll start with first mode of heat transfer, that is conduction, and which is the most important, क्योंकि नीट में जितने भी एग्जाम्पल आए हैं मोस्टली इसी पे आए हैं, इसी पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कंडक्शन पे, राइट? तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू बेसिक्स, और हम लोग सॉलिड्स के लिए ही इसको अप्लाई करते हैं. सो इफ वी हैव अ रॉड, हमारे पास एक रॉड है. रॉड जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कंडक्शन के केस में, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे मेटालिक रॉड की बात कर रहा हूँ, मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ. क्यों नहीं कर रहा हूँ? प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा. प्लास्टिक डजंट कंडक्ट हीट, है ना? प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट बेसिकली. तो अगर आपने एक एंड लगा दिया प्लास्टिक का बर्नर के ऊपर तो वो मेल्ट हो जाएगा. देयर इज नो वे कि एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर नहीं होता है प्लास्टिक में. गुड. तो जब मैं रॉड की बात कर रहा हूं तो आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट अ मेटल हियर. गुड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये हॉट एंड से कोल्ड एंड पे हीट जा रहा है. देन जब तक हर एक सेक्शन का, सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन का, आई विल अज्यूम दिस रॉड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस. ओके. तो जब तक हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब सेक्शन, द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट. वेरिएबल स्टेट. व्हाई वेरिएबल स्टेट? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग, राइट? इंपॉर्टेंट है. सो the state of the rod in which the temperature of each cross section is changing or is not constant with time is called as variable state. What will happen after sufficient time? Sufficient time के बाद हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट बट नॉट सेम. बट नॉट सेम का मतलब क्या? आइडियली हीट शुड फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन to lower temperature region. तो heat should flow from A end to B end. कब तक फ्लो होना चाहिए? जब तक A और B दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. बट दैट इज आइडियल केस, और आपको ऑलरेडी पता है फिजिक्स में आइडियल केसेस
नॉर्मली आइडियल ही रहते हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल केसेस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रॉड को हीट करोगे, तो रॉड को हीट करोगे तो सराउंडिंग तो होगा ना, एटमॉस्फेयर होगा, गैसेस होंगे, तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन और कन्वेक्शन, क्योंकि वो रॉड सराउंडिंग एयर को हीट करेगा और देन एयर गैस है तो कन्वेक्शन से हीट का लॉस हो गया। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज you may have each section at constant temperature but not same। तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ए एंड और बी एंड का टेम्परेचर सेम हो जाए, राइट? बट ऐसा होता है कि ईच सेक्शन अटेन्स टी इक्वल टू कांस्टेंट। हो सकता है ये 100 डिग्री है, नेक्स्ट सेक्शन इज 99 डिग्री, फिर 98 डिग्री, फिर 97 डिग्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। So each section attains a constant temperature but not same. That state is called as steady state. So the state of a rod in which each section is at constant but not same temperature is called as steady state. इतना डिटेल में इसलिए बताना होता है क्योंकि हम जब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे वो स्टेडी स्टेट के लिए ही डिफाइन करेंगे। You cannot define thermal conductivity, law of thermal conductivity at variable state। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो रॉड स्टेडी स्टेट पे नहीं आता तब तक। गुड। देन डू यू रिमेंबर equipotential surface? What was equipotential surface? On that surface, all the particles have same potential. Okay, slight correction। स्लाइड करेक्शन, हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, वहां पे पार्टिकल नहीं है, हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। गुड। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज आइसोथर्मल? व्हाट इज आइसोथर्मल? कांस्टेंट टेम्परेचर। गुड। अब अगर मैं ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज वन क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन? यू टेक अ रॉड, कट इट परपेंडिकुलर टू लेंथ, दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो आपको एक सर्कल दिखेगा, राइट? तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा, राइट? तो दैट सरफेस at that surface on which every point is at same temperature is called as isothermal surface। तो रॉड के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर विल बी सेम। उस सरफेस पे, नेक्स्ट सरफेस पे टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल सरफेस। प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये तो आपको पता है सब, आपने हमने बोला था ना कि ईच क्रॉस सेक्शन अटेन्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बट नीट के लेवल पे व्हाट दे टेल यू इज कंसीडर आइसोथर्मल सरफेसेस, खत्म वहीं पे। तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली द वे दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन। सो आइसोथर्मल सरफेस मतलब क्रॉस सेक्शन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। गुड। देन राइट, सो अगर आपको ये पता है तो फिर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, मुझे आप में से किसी से भी ये एक्सपेक्टेशन है, एनी वन ऑफ यू, यू नीड टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट। हर यूनिट डिस्टेंस यानी हर डिस्टेंस पे जो चेंज होता है, डेटा है, राइट? तो व्हाट यू हैव लर्न सो फार इज कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, आप यहाँ लिखते हो y, यहाँ लिखते हो x, फिर अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो यू विल शो अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। फिर अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज स्लोप ऑफ ग्राफ, तो फिर आप बोलोगे ठीक है, स्लोप निकालने के लिए पहले मैं एक पॉइंट लूंगा a, फिर दूसरा पॉइंट लूंगा b, फिर यहाँ पे वैल्यू रहेगी x1, यहाँ वैल्यू होगी y1, एंड देन हियर यू हैव वैल्यू x2, हियर यू हैव वैल्यू y2। फिर आप बोलोगे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज dy by dx is equal to m or is equal to tan theta or is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। tan theta मतलब ये लाइन जो एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दैट करेक्ट। tan थीटा नहीं भी याद होगा तो डजंट मैटर, आई डोंट केयर फॉर दिस, मुझे ये चाहिए था। इसको बोलते हो आप स्लोप।
इसको बोलते हो आप डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? ये इसलिए क्योंकि मैंने x चेंज किया था, बट जैसे मैंने x चेंज किया y की वैल्यू भी चेंज हो गई। दिस इज एक्स्ट्रा चेंज इन y। तो y की वैल्यू क्यों चेंज हुई? क्योंकि हमने x चेंज किया था। When you change one variable and if the value of other variable changes, that is called as derivative, right? Change in one variable with respect to other, correct? Good. तो ऐसा ही आप डिफाइन करते हो एक्सेलरेशन। आप बोलते हो एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर देंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट कर देंगे, फिर आप बोलोगे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोल दोगे एक्सेलरेशन। फिर आप बोलते हो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप मतलब डेरिवेटिव ही है वो, करेक्ट? अब बहुत बार ऐसा होता है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो और टेम्परेचर चेंज हो गया, राइट? टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो जब भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो, उसको बोलते हो आप ग्रेडियंट। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और वो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर हो सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी हो सकता है। सीखा होगा विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट? अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो उसको बोलते हो रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? ओके, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या रिलेशन आया? यू कैन सी, मैंने पहले ही बोला है कि एक एंड हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड लोअर टेम्परेचर पे है। तो जब आप एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको बोलोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे मान लो एक सेक्शन थीटा टेम्परेचर पे है, दूसरा सेक्शन थीटा प्लस डेल्टा थीटा टेम्परेचर पे है, इन दोनों में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, राइट? करेक्ट, करेक्ट है क्या ये? करेक्ट है ये? करेक्ट है। हॉटर एंड कौन सा था? ए। हाँ तो हाँ माइनस, तो यहाँ पे बीच में माइनस लिखना पड़ेगा, राइट? गुड। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो T1 आपका आ गया थीटा, T2 आपका आ गया थीटा माइनस डेल्टा थीटा। थीटा क्यों यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर के लिए? क्यों? क्योंकि टेंशन रॉड है तो टेंशन इज T, इसलिए टेम्परेचर को थीटा से यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, दिस विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 मान लो, मतलब थीटा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स आएगा, इसको आप बोलोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, करेक्ट? गुड। Why do we need this? Because we need to learn what is law of thermal conductivity. So law of thermal conductivity, have you heard of this? What is law of thermal conductivity? सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो नहीं बोलो, I will tell you. नहीं पता? नहीं। गुड। अभी अभी हमने क्या बोला? Heat will go from A end to B end. मतलब there is some amount of heat Q which is flowing from hotter end to cooler end, right? तो मुझे ये पता करना है कि how much is the heat flow. That is given by law of thermal conductivity. So law of thermal conductivity tells you the amount of heat flowing from hotter end to colder end is proportional to area of cross section. अभी फॉर्मूला याद नहीं रखने होते, वाई? लॉजिक है ये। अभी लॉजिक क्या है मुझे एक बात बताओ। अभी यहाँ पे ये दरवाजा है, मैंने बोला एक को जाओ, इजीली यू कैन गो,
मैं बस दो तुम 2 लोग जाओ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर 3 लोग जाओ तो और डिफिकल्ट होगा। करेक्ट, राइट। अब forget about humans, heat is flowing from this door। मैं डोर का एरिया बढ़ाऊंगा तो ज्यादा हीट फ्लो होगा। हाँ, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। प्रॉब्लम क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यू डोंट रिमेम्बर फॉर्मूलाज, क्योंकि हमको याद रखने का तरीका सीखना है पहले, राइट। तो ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा हीट फ्लो। ओके, तो ज्यादा हीट फ्लो। दूसरा, जब भी दो एंड में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दैट केस ऑल्सो देर विल बी मोर हीट फ्लो। ये 100 डिग्री है, वो 80 है, फिर ये 100 है दिस साइड और वो 20 है, तो हीट विल फ्लो मोर। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं 1 सेकेंड के लिए हीट फ्लो मेजर कर रहा हूं और मैं 1 मिनट के लिए मेजर कर रहा हूं तो उस पर भी डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग। और किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। मान लो कि इन दोनों एंड्स का डिस्टेंस x या फिर l है, वट एवर यू वुड वांट टू कॉल इट, सो यू कैन कॉल इट एज x और l, वट एवर इट इज। तो a और b में डिस्टेंस x है मान लो, राइट। So this is law of thermal conductivity. Law of thermal conductivity tells you the amount of heat flowing from one end to other end is proportional to area of cross section. It is proportional to the difference in temperature. It is proportional to the time for which the heat is flowing. It is inversely proportional to distance between the two ends. तो फिर अब अगर हमको ये हटाना है यहाँ से, तो हम लोग कभी भी एक कांस्टेंट यूज करते हैं। हाँ, तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इजी, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वैसे थर्मल कंडक्टिविटी होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो आप बोलते हो गुड कंडक्टर, राइट। तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो बोलोगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। So if a material has more value, large value of thermal conductivity compared to other material, so that is a good conductor compared to the other material. Good. Then इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Q by T is equal to K A T1 minus T2 by X. Q मतलब क्या था? What was Q here? Heat. Heat मतलब it is form of एनर्जी। एनर्जी अपॉन टाइम कभी सुना है क्या हमने ऐसा? पावर। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज पावर, कंडक्शन रेट। ये पावर है बेसिकली, राइट। इसको अगर मुझे कैलकुलस के फॉर्म में लिखना है, वो भी कैलकुलस के फॉर्म का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज सिंपल कर देंगे हम लोग। ये क्यू जो था, ये क्यू था टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए एन टू बी एन। मुझे देखना है हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन स्मॉल डिस्टेंस dx। हाँ, तो फिर हम बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फॉर स्मॉल टाइम इज इक्वल टू के ए स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन स्मॉल डिस्टेंस dx। ये आ गया आपका dq by dt, मतलब कैलकुलस डेरिवेटिव के फॉर्म में विद अ नेगेटिव साइन। व्हाई नेगेटिव साइन? हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम hotter to colder, मतलब heat is flowing in the direction of decrease in temperature, तो dt की वजह से वहां पे नेगेटिव है, राइट, करेक्ट। तो heat is flowing in the direction of decrease in temperature, तो इसलिए आपके मॉड्यूल्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट को माइनस साइन लिखा है, सिंपल, राइट, डजंट मैटर रियली, यू जस्ट नीड टू नो कि कभी जरूरत पड़ गई तो नेगेटिव साइन कहां से आया पता होना चाहिए। गुड, राइट। अब इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, आपको और एक चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो बता देता हूं, बाद में भी हम कंपेयर करेंगे। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम? क्या बोलते हैं इसको? करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हीट पर यूनिट टाइम को हीट करंट बोलेंगे। तो पावर बोलो, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलो, या फिर हीट करंट बोलो, इट इज द सेम थिंग, राइट। गुड, देन जैसे मैंने आपको बताया अब दैट
This thermal conductivity basically depends on फेस ऑफ द मैटर, मतलब लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और सॉलिड सॉलिड में भी डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है एल्यूमिनियम का, उसके बाद होता है कॉपर का, और उसके बाद होता है एजी। व्हाट इज एजी? सिल्वर। सिल्वर। तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है सिल्वर का, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम, राइट। अब आपको ये समझेगा कि वो खाना, गर्म खाना को एल्यूमिनियम फॉइल में क्यों रखते हैं हम लोग? व्हाई? थर्मल कंडक्टिविटी इज बैड हियर, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट बेसिकली। या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है नाउअडेज, अगर आपके पास जीआई सेक्शन है, पतरा मतलब बेसिकली शेड डाला है आपने, और आपको अगर उसको थर्मल इंसुलेशन करना है तो थर्माकोल के ऊपर ये एल्यूमिनियम का शीट भी लगाते हैं, तो डबल लेयर्ड प्रोटेक्शन होता है वो बेसिकली। गुड। देन यू शुड आल्सो नो, दिस इज वेरी ऑब्वियस, मैं अगर गैस, मैं अगर लिक्विड, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा। इफ आई एम कंपेयरिंग thermal conductivity of gas, liquid and solid, सबसे ज्यादा सॉलिड्स की होगी। क्यों ऐसा? एटम्स पास जल्दी होगा। यस, मतलब यू ऑलरेडी नो कि हियर हीट इज कंडक्टेड बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, so atoms in solids they are comparatively closer, so thermal conductivity is the greatest in solids. Then if you compare with metals and non metals, मैंने अभी बताया था मेटल्स की ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ऑफ कोर्स। गुड, राइट। देन वैसे हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये पता होना चाहिए आपको। देन देयर इज सम लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज विडमैन फ्रांस लॉ। स्टेट बोर्ड में ये वर्ड सुने नहीं होंगे आपने, क्योंकि इट इज स्ट्रिक्टली फॉर योर नीट, और इजी है। एज आई वाज टेलिंग यू, जैसे आप देखो, इन फिजिक्स देयर आर 2-3 चैप्टर्स विच आर एग्जैक्टली रिलेटेड। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है नीट के लिए, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन में m1 m2 by r square, q1 q2 by r square, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब सेंट्रल फोर्स बोलते हैं उसको, मतलब फोर्स का फॉर्मूला सेम है तो पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सारे फॉर्मूलाज का फॉर्म सेम आएगा, राइट। वैसे ही आप जब ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशो होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज विडमैन फ्रांस लॉ। Simple. The ratio of thermal conductivity to that of electrical conductivity is directly proportional to absolute. Absolute मतलब temperature in Kelvin, right? So, anyways, I'll just say temperature. It is proportional to temperature for the time being. तो इसको मैं लिख सकता हूँ equal to LT. L here is called as Lorentz number. Constant of proportionality है, इसको बोलते हैं Lorentz number. तो ये Lorentz नंबर है L, ये इंडक्टेंस नहीं है। इंडक्टेंस आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखोगे, बाय द वे, बिकॉज मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, तो डू यू हैव रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज इंडक्शन? अपोजेस द कॉज, रफ आइडिया थोड़ा बहुत याद आ रहा है इंडक्शन क्या था? पास मिलाया तो इंड्यूस होता है। नो, ओके, ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी स्टडी इंडक्शन। तो ये एल लॉरेंट्ज नंबर है। गुड। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
थर्मोमेट्रिक, अभी थर्मोमेट्री पता होना चाहिए क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है। थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी या फिर इसी को बोलते हैं डिफ्यूजिविटी। व्हाट इज थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी? व्हाट इज थर्मोमेट्री बाय द वे? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी में आपने, मतलब थर्मोमेट्री में आपने एक थर्मल कैपेसिटी नाम की चीज सीखी थी। व्हाट वाज थर्मल कैपेसिटी? और कल ही टेस्ट हुआ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पता होगा। एम एस, वो तो हीट इक्वेशन था ना, वो तो हीट इक्वेशन था। एम मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइजिंग टेम्परेचर, है तो हीट इक्वेशन है। क्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी में क्या डिफरेंस था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कैपेसिटी में आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री। पर 1 डिग्री बोल दिया तो मतलब डेल्टा टी गया है यहाँ से। तो ये है आपका थर्मल कैपेसिटी विच इज m इंटू एस, राइट। अगर मैं थर्मल कैपेसिटी को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम? डेंसिटी। तो ये आ गया डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट, राइट। अब ये जो डिफ्यूजिविटी मैंने लिखा है ना, इसको डी से डिनोट करेंगे। डिफ्यूजिविटी इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू दैट ऑफ थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब it is the ratio of K upon rho S. Diffusivity is the ratio of thermal conductivity to that of thermal capacity per unit volume. Okay, good. तो ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डिफ्यूजिविटी पे भी पूछा गया है। सिर्फ फॉर्मूला पता होता तो सॉल्व हो जाता, बिकॉज द क्वेश्चन वाज लाइक दिस। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी थी, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था, मतलब डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, और स्पेसिफिक हीट भी बताया था, तो हो जाता सॉल्व अगर फॉर्मूला पता होता तो। गुड। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। अगर आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझा है तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस भी समझेगा। आप इसको आर टी से डिनोट कर देंगे। What do you mean by electrical resistance? Flow of current. Opposition to electrical current. Opposition offered by a material to the flow of electric current is called as electrical resistance. So, what will be thermal resistance then? Opposition to thermal conduction. Opposition to flow of heat. That is basically thermal resistance. अभी हमने देखा थोड़ा टाइम पहले, जिसको मैंने P से डिनोट किया था, इसको हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट करंट, तो मैं इसको H बोल देता हूँ, डजंट मैटर रियली। ओके, और ये हमारे पास आया था K A T1 माइनस T2 बाय X डिस्टेंस। ओके, आपके मॉड्यूल्स में इसको यहाँ पे L बोला है और इसको यहाँ पे H इंस्टेड ऑफ P H, इंस्टेड ऑफ X L, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। You can use the notation whatever you want, right? तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? How do you define resistance in terms of current? V by I. Good. What is V into I, by the way? V by IBR और V into IBR. V by I क्या होता है? रेजिस्टेंस। V into I क्या होता है? V into I क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। तो V into I पावर होता है। I स्क्वायर R क्या होता है? पावर। V into I
पावर, वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है, पावर। वी स्क्वायर बाय आर ये सेंट्रीपिटल मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गुड, जस्ट टू रिमेंबर, लाइक ये याद रखो ऐसा। तो एज यू सेड कि रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज V by I, where V is potential difference between two points। करंट कब फ्लो होगा, जब दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी फ्लो होगा, तो ये एक्चुअली डेल्टा V है। फिर V by I क्यों लिखते हो, क्योंकि आप बोलते हो ना कि एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ही था, हाँ तो इसलिए डेल्टा V, करेक्ट, क्लियर। ये रेजिस्टेंस था। अब इसको मैं अगर ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो मैंने ऑलरेडी बताया H ये हीट करंट है, जैसे I ये इलेक्ट्रिक करंट है, डेल्टा V ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डेल्टा T ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो फिर आप बोल सकते हो ऐसा, ये इक्वेशन से यहां से फ्रॉम हियर यू कैन से T1 minus T2 by H is equal to X upon Ka. This is nothing but thermal resistance. Okay, analogous. What big deal? Nothing. ये ऐसा है, समझा कैसे किया हमने, हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कंपेयर करके लिया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे दो पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट फ्लो होगा। तो डेल्टा V यहाँ पे डेल्टा T, वहां पे नीचे करंट, यहाँ पे भी नीचे करंट, वहां पे I बोलते हैं, यहाँ पे H बोलते हैं, हो गया। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड आउट थर्मल रेजिस्टेंस, और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो ये तो याद रहेगा कि हम हमारे पास हीट फ्लो का इक्वेशन था K A T1 minus T2। ये कैसे याद रहेगा, ये ऐसा याद रहता है जैसे मैंने बताया, किसी भी वन एंड से दूसरे एंड में हीट फ्लो is proportional to area, area ज्यादा तो heat flow ज्यादा, it is proportional to difference in temperature, it is proportional to time for which the heat is flowing upon the distance। तो ये proportionality constant हमने हटा दिया यहाँ से, तो आपको ये मिलेगा इक्वल टू K। फिर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे Q by T, इसको आप बोलोगे H, दैट इज इक्वल टू K A T1 minus T2 को बोलेंगे डेल्टा T by X। फिर आपको पता है ऑलरेडी कि डेल्टा T by H इज इक्वल टू X अपॉन Ka। ये आ गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस, डेल्टा T डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन H इज थर्मल करंट, राइट। हीट पर यूनिट टाइम, जैसे चार्ज पर यूनिट टाइम, वैसे हीट पर यूनिट टाइम, तो इसको बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस RT। तो ये कोई इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, द थिंग इज कभी ऐसा सीखा नहीं, और ये होता है प्रॉब्लम यू नो, बिकॉज सडनली अगर एकदम से पढ़ने की आदत चेंज करनी पड़ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको, पर ये लंबी रेस का घोड़ा वाला टेक्निक है, यू नेवर फॉरगेट दिस, क्योंकि समझा है ना, कॉन्सेप्ट समझा है, तो एग्जाम में क्या चाहिए, नीट जैसे तो वो चाहिए। वी आर नॉट राइटिंग स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हियर, तो नीट में ये करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। अब अगर ये सब समझा होगा तो यू कैन इजीली, मैं इसलिए बोल रहा था, दैट वाज द रीजन टू टेल यू कि कभी भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसमिशन ऑफ हीट को साथ में अगर पढ़ोगे तो फॉर्मूलाज याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अभी आप पे डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू put a lot of pressure on your core memory or you want to do smart work, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं बोलूंगा चलो ठीक है, थर्मल कंडक्शन को और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को कंपेयर कर लेंगे हम। तो कंपैरिजन विल गिव अस, और कंपैरिजन विल लीड टू इजियर वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। जैसे
let us compare both of this thermal conduction and इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. इन दोनों को हम कंपैरिजन में देख लेते हैं. गुड. पॉइंट बाय पॉइंट. सबसे पहले हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. मॉड्यूल्स बंद करके रखो, घर पे देखना होता है वो, यहाँ नहीं. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मॉड्यूल्स बंद करके रखो. मॉड्यूल्स बंद करके रखो. गुड. राइट. देन यहां पे आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट. यहां पे आप रेट ऑफ हीट फ्लो को बोलते हो हीट करंट. so this is heat current, this is electric current. then good. हमारे यहाँ पे ये आया हमारे पास T1 माइनस T2 बाई H, और यहाँ पे आपके पास ये रहेगा V1 माइनस V2 बाई R. करेक्ट. गुड. करेक्ट है ना ये. हाँ, यहाँ पे RT है, थर्मल रेजिस्टेंस है. ये यहीं से किया, सिर्फ ये H को शिफ्ट कर दिया, ये RT को यहाँ लिख दिया, खत्म. गुड. देन what else you can compare is, do you remember you have learned something called as electrical conductivity या electrical resistivity, जो भी याद हो, या फिर electrical resistance. क्योंकि what I want is to have formulas. जैसे यहाँ पे ये x को अगर आप L लिखोगे, that is length of the rod, तो थर्मल रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया. वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लिखते हो. कैसे लिखते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को? इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया बोल रहा हूं मैं. मेरे पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. इसमें मैं थर्मल रेजिस्टेंस की भी बात कर रहा हूँ, इसी में मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की भी बात कर रहा हूँ. यस. अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी को अगर आप L और A के टर्म में लिख सकते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी लिख सकते हो. मतलब अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस को लिख सकते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ L एंड A. ठीक है सर, अभी बात कर ही रहे हैं, तो लेट मी चेक हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड अबाउट, कितना आपको समझा है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? नहीं. मोर वाइब्रेशंस. सॉलिड्स में एज आई टोल्ड यू, आपके पास आयोन्स है और आयोन्स वाइब्रेट हो रहे हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक एंड से दूसरे एंड जाने की कोशिश कर रहा था, बट ये वाइब्रेशंस की वजह से नहीं जा पा रहा है, आयन से कोलाइड होगा. बराबर. मैंने अगर एरिया बढ़ा दिया, तो मैंने वो दो आयन्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा. इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बराबर. जितना लेंथ ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कोलिजन्स होगा, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. फिर आप बोलते हो दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. राइट. करेक्ट. बराबर. रेजिस्टिविटी है ये.
और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को आप बोलते हो कंडक्टिविटी। मतलब इन शॉर्ट यू कैन राइट R इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा, है ना। तो फिर कहां पे कुछ डिफरेंस है, यहां पे भी तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए है, वहां पे सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, राइट। तो दैट्स इट, ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए आपको। सो नो बिग डील, सिंपल सिंपल चीजें थी। अब जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, वैसे ही आप यहाँ पे रॉड्स को भी कंबाइन करके सीरीज में और पैरेलल में लगा सकते हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको, सीरीज रेजिस्टेंस क्या था इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में सीरीज, हाँ राइट, पैरेलल में 1 बाय, हाँ। तो अभी यहाँ पे भी आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे you need to specify length and area of each rod। मेरे पास एक रॉड है, दिस इज वन रॉड, मैं 3 डायमेंशन में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई डोंट केयर फॉर डायमेंशन फॉर द टाइम बीइंग। मेरे पास और एक रॉड है, then I have another rod, then I have another rod, then I may have another rod। तो जब आप पैरेलल में लगा रहे हो तो लेंथ ऑफ ईच रॉड शुड बी सेम। रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ सीखा नहीं है, देखा क्या ऐसा कुछ नहीं, राइट। एंड एरिया मे बी डिफरेंट। So here length of first rod, length of second rod, length of n number of rods each is same, but area of cross sections are not same, right? Good। इससे क्या होगा, इससे आपको थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ये और एक बार आप देख लो। तो थर्मल कंडक्टिविटी के 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 कहाँ गया थर्मल कंडक्टिविटी के, ये के है ना। मैं इस x को अगर यहां पे शिफ्ट कर देता और मैं अगर एरिया A को भी शिफ्ट कर देता तो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है x बाय a, मतलब लेंथ बाय a इन शॉर्ट। तो अगर लेंथ या एरिया दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे दैट मैंने जितने भी रॉड्स लिए हैं सबका थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल नहीं है। तो पहले का K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3 एंड सो फोर्थ। तो एरिया भी सेम नहीं है, तो एरियाज आर आल्सो नॉट इक्वल, ओनली लेंथ इज इक्वल, right? Good। Then what is parallel combination of the equivalent resistance in parallel? हाँ, वो तो आपने मेरे को 2 का बताया, मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, 1 बाय r इक्वल टू r1 प्लस 1 बाय r2। तो यहाँ पे भी वही है, इज द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। और r कैसे लिखते हो अभी तो बताया, r कैसे लिखते हो, l अपॉन की। तो आपका r1 आएगा, लेंथ सेम है, l अपॉन k1 a1, r2 इज इक्वल टू l अपॉन k2 a2। फिर ये r1 r2 की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यू कैन सॉल्व। आई कीप दिस फॉर न्यूमेरिकल्स, अभी नहीं करेंगे हम लोग,
अभी और इम्पोर्टेंट चीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. What do you mean by series combination and what do you mean by parallel combination? नहीं, करंट तो ठीक है, सेम जाता है. आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू मीन बाय Positive to positive parallel. one end common is series, both ends common parallel. अब अगर मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो सब में से करंट होगा सेम. तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो करंट इज सेम. रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. मतलब करंट, टोटल करंट इज करंट थ्रू 1 प्लस करंट थ्रू 2 प्लस करंट थ्रू 3, ऐसा लिखते हो. हाँ, तो फिर यहाँ पे भी वही करना है ना. तो ये पैरेलल में है तो यहाँ पे आप जब बोलोगे यहाँ पे हीट करंट, टोटल हीट करंट इज करंट थ्रू फर्स्ट रॉड प्लस करंट थ्रू सेकेंड रॉड एंड सो ऑन. तो क्या क्या अलग क्या है इसमें? आई डोंट सी एनीथिंग, एनी डिफरेंस हियर. तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई एक आई हैव सीन स्टूडेंट्स एक पढ़ा दूसरा छोड़ दिया. सबसे इजी है ये, क्योंकि एक पता है तो दूसरा पता ही है आपको, बाय डिफॉल्ट पता है. फिर आप बेसिकली, आई मीन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था. क्या बताया था? अभी यहां से देखो आप, आपके पास आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप? यू विल राइट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेंथ, टोटल लेंथ, अपॉन अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू ए. तो फिर ये सारा का सारा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, मतलब आर इक्विवेलेंट में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट के इक्विवेलेंट. तो दैट आई विल नॉट राइट हियर. वो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूँ. के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वो सब आपको करना पड़ेगा. ओके, ये सब मैथमेटिक्स यू कैन डू. कहाँ से? यहीं से. पुट वैल्यूज ऑफ हीट करंट एंड देन सॉल्व इट. तो फाइनली यू विल हैव K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लिख रहा क्योंकि ऐसा अजम्पशन है कि हर एक मेटालिक रॉड के हर एक एंड पे टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड पे टेम्परेचर T2 है. ये अजम्पशन है यहाँ पे ऑलरेडी. तो θ1 θ2 आर सेम फॉर ऑल ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग डाउन. तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन. और याद रखना क्या डिफिकल्ट है यहाँ पे? नथिंग. मुझे बताओ, फिजिक्स में मैंने क्या बताया था आपको? लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी होना चाहिए ना. ऐसा लिखा है कभी आपने? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसा लिखा है? क्या लिखते हो आप? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा लिखते हो ना? या तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा लिखते हो? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हो ना? कभी लिखा है क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी? नहीं. फिर यहाँ पे क्यों आप लोग ऐसा लिखोगे कि इक्विवेलेंट इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2? नहीं लिख सकते. K इक्वल टू के आना चाहिए. मतलब ये जो है ये ऑड मैन आउट है, इसकी जरूरत फिजिकली डायमेंशनली नहीं है. तो एरिया से डिवाइड कर दो. तो कितना डिफिकल्ट है फॉर्मूला याद रखना? थोड़ा डायमेंशनली सोचो ना उसको. प्रॉब्लम दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ. कि फॉर्मूला याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा उसको फिजिकली. गुड. देन अब अगर इतना हो गया आपका, फिर तो क्या है, वो इट्स जस्ट, आई मीन अगर अभी बोल दिया ऐसा कि इफ सारे के सारे रॉड का एरिया सेम है, तो सारे के सारे रॉड का अगर एरिया सेम है तो, और एन रॉड है मेरे पास, फिर क्या आएगा? के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अपॉन एन. अगर दो ही है तो K1 प्लस K2/2. राइट. गुड. देन सेकेंड इज सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में बाय लॉजिक
जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाय लॉजिक लेंथ सबका सेम होना चाहिए था, सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम होना चाहिए. सो यू मे हैव वन रॉड of length L1, you may have another rod of smaller length but same cross section area, same cross section area ऐसा assume कर लेना. Then you may have third rod with some other length but area of cross section is still same. So series combination में it is important that you have area of cross sections to be same, length L1, L2, L3 and so on so forth. तो अभी जैसे आपने equivalent resistance in parallel for थर्मल केस में लिखा है, मेटालिक रॉड के केस में लिखा है, और आपने ये भी बताया कि मोर और लेस इलेक्ट्रिकल और इस केस में सेम ही आता है, यहाँ पे सेम आएगा. यहाँ पे क्या आएगा फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 सेम सेम. इलेक्ट्रिकल सीरीज कॉम्बिनेशन, थर्मल सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस सेम सेम, फॉर्मूलाज आर सेम, फॉर्मूलाज आर सेम. गुड. तो बाकी का तो आप कर लोगे ऐसा assumption है मेरा. So I will not go into other things. I am not going to go into बहुत कुछ डिराइव करके रखा है, जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे. आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? पक्का? यस, नो, न्यूट्रल. इवन न्यूट्रॉन्स आर नॉट न्यूट्रल. Neutrons are made up of quarks. Quarks are positively or negatively charged. So neutral answer is not accepted here. हाँ, good, good. Then अभी हमको देखना है temperature of composite rod. Temperature of interface of composite rod. Composite bar rod. Whatever it is. इसका मतलब सिंपल है, हमारे पास एक रॉड है ऑफ सम मटेरियल, फिर हमारे पास दूसरा रॉड है, राइट. सो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ अलग अलग हो सकता है, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 ऐसा मान लेते हैं. सो दिस इज L1, दिस इज L2 ऐसा मान लेते हैं हम लोग. देन I want to know, और of course both of these are different materials. Different material मतलब different thermal conductivity, क्योंकि thermal conductivity is property of the characteristics of the material, है ना. तो different conductivity है. I want to know what is the temperature theta of the interface, मतलब जहां पे दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, प्रोवाइडेड इस एंड का टेम्परेचर θ1 है और दूसरे एंड का टेम्परेचर θ2 है. हमको इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहां पे दो मटेरियल चेंज होते हैं, राइट, दैट इज इंटरफेस. जैसे ये दिस इज इंटरफेस, एयर देन ग्लास, राइट. सो दैट इज इंटरफेस. पानी का ग्लास भर के रख दिया, टॉप सरफेस ऑफ वाटर इज इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस. तो आई वांट टू नो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस. तो कैसे करेंगे इसको? ऑफ कोर्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मतलब heat is flowing from end A to end B. of course. कैसे करेंगे? How do you do this? अच्छा, मुझे लॉजिकली बताओ अब. I want to understand one thing from your side. A से B जाने के लिए रास्ते में C आएगा ना, सोचना ऐसे ही फिजिक्स को. मुझे अगर यहाँ से वहां जाना है, बीच में एक मिड पॉइंट आ गया, अभी हीट A से B फ्लो हो रहा है, तो A से C कब फ्लो होगा? जब टेम्परेचर θ1 इज ग्रेटर देन थीटा, बराबर, गुड. और C से B कब फ्लो होगा? थीटा इज ग्रेटर देन, वेरी गुड. सब तो पता है आप लोगों को. फिर
फिर आपको ये याद है क्या, Q बाई टी हमने ये इक्वेशन क्या लिखा था, याद है क्या, के ए, T1 minus हाँ तो थीटा वन माइनस थीटा अपॉन एल, लेकिन मटेरियल अलग है तो के अलग है और लेंथ तो अलग अलग है ही, बराबर। ऑल्सो मुझे ये भी पता है कि अब सी से बी कब जाएगा, के टू ए theta minus थीटा माइनस थीटा टू अपॉन एल टू। हमारा इंटरेस्ट किसमें था, टू फाइंड आउट थीटा। वेरी गुड, मतलब मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा। गुड, तो k1 a थीटा वन माइनस थीटा अपॉन L1 इक्वल टू k2 a थीटा माइनस थीटा टू अपॉन L2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस, k1 a L2 थीटा वन माइनस थीटा इक्वल टू k2 a L1 थीटा माइनस थीटा टू। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। सॉल्व कैसे करना है वो आप देख लो, करना तो पड़ेगा क्योंकि फिर इसको आप इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो थीटा थीटा है वो एक साइड पे ले जाएंगे, वो सब आप करते बैठो। तो आई एम गोइंग टू गिव यू डायरेक्ट डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू, कैसे डायरेक्ट डायरेक्ट, बिकॉज याद रखना इजी है, बहुत इजी है ये। k1 देन थीटा वन L2 प्लस k2 थीटा टू L1। मैंने क्या बताया था फिजिक्स में, क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। हाँ, तो अपॉन, अभी लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर है तो राइट हैंड साइड में टेम्परेचर, मतलब सिर्फ थीटा रहना चाहिए, मतलब डिवाइड बाय k1 L2 प्लस k2 L1। तो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर फॉर्मूलाज। तो अब तो फिर आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि अगर दोनों मटेरियल सेम होंगे तो k1 इक्वल टू k2 होगा, दोनों का लेंथ सेम होगा तो L1 इक्वल टू L2 होगा। दोनों का टेम्परेचर सेम मत बोल देना क्योंकि फिर हीट नहीं फ्लो होगा। अगर आपने बोल दिया कि हाँ ए और बी एंड का टेम्परेचर सेम है तो बात वहीं खत्म हो गई, हीट विल नॉट फ्लो बिकॉज हीट डजंट फ्लो व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो नहीं हो सकता। तो ये जनरल फॉर्मूला था। Then there is something called as Ingen. I don't know if they pronounce it like Ingen house, S के साथ। वैसे जरूरत नहीं है आपको, अगर ये याद रहे नहीं रहे, we don't care for names, we just want to know equation। तो बेसिकली आपको दो अलग अलग रॉड्स, अलग अलग मटेरियल के रॉड्स, अलग अलग लेंथ के रॉड्स की कंडक्टिविटी को, थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो इट जस्ट टेल्स यू दैट इट इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, दैट्स इट। इतना पता होना चाहिए। वी डोंट केयर फॉर वो इंगेन हाउस एक्सपेरिमेंट था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वी जस्ट केयर फॉर द फॉर्मूला। इफ आई वांट टू कंपेयर thermal conductivity of two rods of length L1 and L2, तो ऐसा उसको आप कंपेयर कर सकते हो। गुड इनफ। देन there is some Searle's experiment which we don't care, growth of ice on lake which we don't care for the time being, हमको फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी। देन कन्वेक्शन हम बाद में देखेंगे क्योंकि कन्वेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम देखेंगे अभी रेडिएशन। तो ये सारा अभी तक कंडक्शन की बात चल रही थी, ओके। तो कन्वेक्शन में एक ही फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे बाद में, इट इज इजी। इफ यू नो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? हाँ, गुड। ग्रेडियंट ऑफ व्हाट? अब हाँ, ओके, समवॉट करेक्ट। अभी ठंडी में हम जब पानी गर्म करते हैं, फिर हम नहाने के लिए जब टैप ओपन करते हैं,
फिर घर में कोई बोलेगा, मुझे तो बोलते थे कि वो गर्म पानी के साथ ठंडा पानी मिक्स करते जाओ, और मैं बोलता था क्या मतलब, क्या लॉजिक क्या है उसमें? लॉजिक था, साइंस था। द थिंग इज, rate of cooling of a body is directly proportional to the excess of temperature of body over the surrounding, या तो in simple language, difference in temperature between the body and the surrounding. जितना ज्यादा बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना जल्दी उसका कूलिंग होगा, सिंपल लैंग्वेज। इसलिए चाय ठंडी में जल्दी ठंडी होती है, हीट करो, रख दो फटाफट। क्यों? उसको आप 80-90 डिग्री पे ले गए थे और सराउंडिंग 5 डिग्री है, डिफरेंस ज्यादा है, तो कूलिंग ज्यादा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा है, राइट? तो कन्वेक्शन में बस वैसा एक सिमिलर फॉर्मूला लगने वाला है हमको। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कन्वेक्शन नाउ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन में मुझे ये पता करना है आप लोगों से, हाउ मच डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर बाद में रेडिएशन देखेंगे, क्योंकि रेडिएशन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो माय मिनिमम एक्सपेक्टेशन इज, ज्यादा नहीं, मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से पता होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि विजिबल रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हुए, फिर माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस हुए, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस हुए, फिर रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुए, और रेडियो वेव्स ही टेलीकम्युनिकेशन में क्यों यूज करते हैं, एक्सरे के लिए, एक्सरे फोटोग्राफ निकालने के लिए एक्सरे ही क्यों यूज करते हैं, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुए, आई डोंट केयर फॉर दैट एट दिस मोमेंट। अल्ट्रावायलेट रेस मतलब व्हाई दे आर हार्मफुल, फिर वो आप सनस्क्रीन लोशन क्यों लगाते हो सनस्क्रीन लोशन, दैट इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम UV rays. So those are reflector of UV rays basically. But I want to know, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से पार्ट का होता है स्पेक्ट्रम में? शुरुआत शुरुआत कॉस्मिक रे से होती है, बट लेट अस फॉरगेट अबाउट कॉस्मिक, वो कॉस्मोस, वो यूनिवर्स से आ रहा है तो छोड़ दो। ग्यामा रेस, सबसे ज्यादा ग्यामा रेस, राइट? गुड। तो माय एक्सपेक्टेशन इज, लेट्स सी कि आपको कम से कम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज की रफ रफ वैल्यू पता है कि नहीं। Gamma rays, by the way, they are produced inside nucleus, by the way. तो ठीक है, विल नॉट टॉक अबाउट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मैं बोलूंगा यहाँ पे पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम या फिर रेडिएशन, टाइप ऑफ रेडिएशन। देन आई वांट टू नो if you know frequency and if you know wavelength lambda। तो gamma rays का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वेवलेंथ कितना होता है, ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे वैल्यूज हम देखेंगे बाद में। गामा रेस के बाद एक्स रेस, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड में 3 टाइप होते हैं वैसे, नियर, मिड, फार। देन खाना किस में गर्म करते हो? माइक्रोवेव्स। देन फोन पे बात किससे करते हो? रेडियो वेव्स, राइट? गुड। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, गामा रेस का एनर्जी ज्यादा कि रेडियो वेव्स का एनर्जी ज्यादा? गामा रेस का एनर्जी इज इक्वल टू mc², नहीं, मुझे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सुनना है, h न्यू बराबर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा का, तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम गामा टू रेडियो। और since energy is proportional to frequency, so frequency is also decreasing from gamma to radio.
है ना, वैसे। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? c by lambda। वेरी गुड। इसका मतलब wavelength is increasing from radio to gamma। बराबर है ना, रेडियो वेव का सबसे ज्यादा हाँ वेवलेंथ रहेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो का, सबसे कम होता है गामा का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा का और सबसे कम होता है रेडियो का। और इसीलिए सी द थिंग इज, इस पे तो पूरा एक लेक्चर कम पड़ जाएगा। दैट इज व्हाई यू ओनली यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। क्यों? लीस्ट हार्मफुल छोड़ दो, लीस्ट आयोनाइज नहीं करेगा। व्हाट ही वांट्स टू से इज, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस नहीं है जो रेडियो वेव्स को एब्सॉर्ब कर सके। तो एब्जॉर्प्शन कम होगा तब तो सिग्नल का ट्रांसमिशन अच्छा होगा। ट्रांसमिशन इसके बाद हम लोग आने वाले हैं उस पर, राइट। इफ देयर इज गैस व्हिच डजंट एब्सॉर्ब वेव्स तो फिर वो ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ से सैटेलाइट से वापस से अदर एंड पे पहुंचेगा। वेल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। आप सुनोगे क्योंकि आप डॉक्टर्स बनने वाले हो आगे जाके, तो आपको काम में भी आएगा। हाउ डू यू नो कि मेरे पास एक सिरप है उसमें कैल्शियम ही है, उसमें यही मॉलिक्यूल है, उसमें वही मॉलिक्यूल है, हाउ डू यू नो? हाँ, तो आप क्या करते हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डालते हो और दूसरे एंड से चेक करते हो कि यहाँ पे ये वेवलेंथ गायब हो गया, मतलब वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया तो मतलब आप बोलते हो कि अरे ये लिक्विड में H2O रहा होगा इसलिए यहाँ से माइक्रोवेव गायब हो गया, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्पस। तो एनीवेज, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड फॉर टुडे इज, अभी आपने बता दिया और आपको समझा भी है, ये पता भी है दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। बट कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल है, अगर मेरे पास वेवलेंथ मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस ज्यादा है, राइट, तो या फिर क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस कम है, दिस इज वेवलेंथ, राइट। crest to crest distance. What is frequency? The number of waves passed through one point. Number of waves passing through a point per second per unit time. तो ये लॉजिकल था कि अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो एक सेकेंड में उस पॉइंट में से कम वेव्स पास होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ये आपको जब मैं इंटरफेरेंस लूंगा तब समझेगा कि व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वे। फिर हर चीज लिंक करनी है हमको। गुड, तो it is 7:30 and we are going to stop.